अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स खुश आमदीद क्रिकेट क्लिनिक के साथ आसिफ अहमद मुदस्सिर मिर्जा और साइम कश्मीरी हाजिर हैं। ग्रेट न्यूज़ कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ने 2-0 एक अनअसेलेबल लीड ले ली है, और सीरीज अपने नाम कर ली है, ओडीआई सीरीज। एंड एज यू नो दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज विन फॉर पाकिस्तान। ये सिलसिला ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भी फ्लूक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की भी मोरलेस फ्रंट लाइन टीम थी। उसके बाद जिम्बाब्वे, इवन तो जिम्बाब्वे हमने बहुत सारे प्लेयर्स जो है रेस्ट किए हुए थे, उसके बावजूद भी वन दैट सीरीज। और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टू गेम्स वी वन। और आज की जो विन है वो तो बड़ी कन्विंसिंग विन थी। इनफैक्ट आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि हमने हैमर किया है, क्रश किया है साउथ अफ्रीका को 80 प्लस रन से। um, अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या व्यूज हैं, क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। एंड देन आफ्टर दैट वी गोना ब्रेक इट अप एंड थिंक अबाउट व्हाट आर द पॉजिटिव्स फॉर आवर टीम गोइंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। कौन स्टार्ट करेगा जी आप में से? भाई। Uh, so I will start. Bismillah. Yeah. Hey, look, it's great news, obviously. Look, anytime we do an episode that is so close to our previous episode, you know it's because we've won, right? We're not going to do an episode when we've lost. But it's a big deal. It's a big deal to win in South Africa, and especially वही जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि it was a fluke to win in Australia, but back to back to back. Not just the fact that you win a series in Australia or you win in South Africa, it's the way they're doing it. Number one, it's different ways. Sometimes it's your batting, sometimes it's your fielding, sometimes your bowlers. Bowlers may be एक खास बंदा नहीं है. It's different people, हम्म। right? कभी हम्म। कभार it's your spinners, कभी कभार it's your pace bowlers. In या Australia, देयर our 6 और pace 7 bowlers, प्लेयर्स जो हम बात करेंगे जिनकी yeah, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही beautiful हैं। art. In Australia, our pace bowlers had them quaking in their boots. Ab Ye we saw in the first match, Saim Ayub was phenomenal. I mean, what he did was amazing, and that too on the back of a 98 not out in the T20. He T20। sacrificed a century, comes back and scores another century, and then we say, all right, how dependent are we on Saim Ayub? Well, he got out cheaply today, and so what happened? You see Babar and Rizwan, our old stalwarts, getting the job done. You see Kamran Ghulam coming out of nowhere. I mean, we've all known हम्म। he was या knocking on ऑलमोस्ट the door 200 of की स्ट्राइक international रेट के cricket. साथ, हु न्यू कि वो Yeah. इतना स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है। So it's the fact that you've done it in different ways with different players, which shows the versatility of this team, which shows that there's always more than one way. We have more than one match winner, which really shows the depth that we have. And look, I mean, it's been really sad going for Pakistan the last year and a half or so, but this things are looking up. I think the only negative you could think is we're doing this overseas, and we've not been playing as well in Pakistan. There will be some matches in Pakistan in the lead up as well. We need to make sure we can do well in on home territory, really press our home advantage. But it's nothing but great news. I mean, you cannot overstate. I think what I was reading today is we are the only team to have beaten South. It's a niche statistic. We're the only team to have beaten South Africa in a one-day series three times in the 21st century, which I हम्म। know is a niche. And I think it's are we the only team to have beaten Australia and South Africa back to back on the road, something like that. I mean, that's so Probably. obviously I won't that's be more surprised. I important. mean, because But I mean, it's that's the most impressive thing. You've right, won right, in these difficult series. Even Zimbabwe, you could have had a huge letdown, and they didn't. right, And doing it through different ways. So it's great to see. I hope there's not a huge letdown in the third right, match, the rubber match. Obviously, you could see that happening, but I hope they keep the pressure on. Psychologically, we want to stay in the minds of South Africa. right. And not to forget, this was basically South Africa's front line team. Yes, Yeah. एक आधा उनका बॉलर इंजर्ड है अभी, बट Miller was बैटिंग back उनकी for this बिल्कुल match. दिस Miller दिस इज was देयर फ्रंट back. लाइन बैटिंग। Yeah. Yeah. आज तो Exactly. उन्होंने मिलर को भी खिलाया, आज उन्होंने क्लासन भी था, मिलर भी था, Yeah. Yeah. वैंडर डूसन। सो उसके Yeah. बावजूद इतने कन्विंसिंगली हराना इज अमेजिंग। मिर्जा, आप अपनी थॉट्स शेयर करें प्लीज। हाँ नहीं यार, इट्स बिग न्यूज। और ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ था। दे हैड अ फुल टीम। पहले Mhm. दो ओडीआई हम जीते थे, थर्ड में वी लॉस्ट राइट इन ऑस्ट्रेलिया Yeah. 2-0 थर्ड हम में लोग। उन्होंने रेस्ट किया था। हम वी लॉस्ट द फर्स्ट गेम नैरोली। वो 2 विकेट से वो जीत गए थे। बट उसके बाद सेकंड गेम उन्होंने पूरी फ्रंट लाइन खिलाई थी और हमने उनको फिर भी हराया था। अच्छा। एंड Head थर्ड maybe. में द No, रेस्टेड अ Head फ्यू was प्लेयर्स। not there. हम्म। Travis Head was not there, was he? ट्रेविस हेड वाज नॉट देयर। ट्रेविस No. हेड वाज सिटिंग आउट, आई थिंक Lekin फिर उसका भी कोई। जो भी है, doesn't हाँ। matter. Yeah. हाँ, मतलब एक प्लेयर पे तो नहीं डिपेंड करना चाहिए ना टीम को। हाँ. नहीं तो बॉलिंग उनकी पूरी थी। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की, इट वाज प्रीटी मच लाइक अ फर्स्ट चॉइस 11। Yeah.
मगर ये हम लोग वही स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे कि काउंटर इंट्यूटिवली वी वॉन लाइक 2-1 and 3-1 in T20 and 2-1 in ODI in South Africa in 2021 under Babar. उससे पहले फिर मिसबा 2014. So actually we have been doing good for some strange reason in ODI in South Africa. We are struggling mainly in test matches so far. तो वो भी अभी शुरू होगा तो हम देखते हैं. टेस्ट में तो खैर थोड़ा सा आकिब के बाद रिवाइवल आया है एटलीस्ट होम के अंदर। अब देखते हैं कि हाँ, वो आउटसाइड पाकिस्तान कैसा रहेगा। बट ये Yeah. कि एटलीस्ट ओडीआई में और हमारी रैंकिंग भी वी आर थर्ड रैंक एंड वी आर अपवर्ड मोबाइल, हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है एंड हाँ, ग्रेट साइन बिकॉज अभी चैंपियंस ट्रॉफी एज वी नो इज ओडीआई फॉर्मेट। तो 2 महीना पहले इस तरह की अच्छी फॉर्म लेके जाना। कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, सो आई स्टार्ट विद 1 और 2 और फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्ड करें। शाहीन अफरीदी की जो फॉर्म वापस आई है, देयर वाज अ टाइम कि ही वाज बेयरली टचिंग 130 125 130 से उसकी स्पीड भी गिर गई थी। स्पीड तो चलो है ही है, बट उसका कंट्रोल और उसकी रिदम और उसका कॉन्फिडेंस, ही वाजंट द शाहीन दैट वी ऑल लव्ड एंड एडमायर्ड। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज क्लॉकिंग अबाउट मिड 140s। और उसके अलावा उसकी जो रिदम है, उसका कंट्रोल है यॉर्कर्स के साथ, आई फॉरगॉटन किस तरीके के करता है। आज जो उसने यॉर्कर से आउट किया है उसको, मार्को जैनसन को, और उसके अलावा जिस तरह उसने अंदर बॉल लेकर आया है मिलर को, मिलर और की जबरदस्त पार्टनरशिप लगी हुई थी और एक स्टेज पे हो गया था कि यार ये थोड़ी देर 30-40 रन और बना लें तो टफ हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बट किस तरीके से वो बॉल को अंदर लेकर आए आफ्टर गेटिंग हिट फॉर अ फोर, सो अमेजिंग। आई मीन शाहीन की फॉर्म बहुत एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। तो एक तो मैं ये बात करूंगा, और दूसरा आई थिंक ओवरऑल आई थिंक रिजवान डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हिज कैप्टनसी। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था उसकी ओडीआई में कैप्टनसी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अटैक के ऊपर जाना। और इन 2 गेम्स के अंदर भी हमने देखा है कि जिस तरीके से उसने रोटेशन अपने बॉलर्स की करवाई है। पहली गेम के अंदर जब वो देख रहा है कि यार स्पिन की हेल्प हो रही है तो साइम को भी वो साथ लेकर आया, उससे भी ओवर्स करवाए कुछ। आज के गेम के अंदर टाइमली वापस लेकर आया शाहीन अफरीदी को, शाहीन अफरीदी ने ब्रेक yes. थ्रू दिलवाई। और मोटिवेट करना, रिव्यूज बड़े अच्छे लिए, वी गॉट 3 रिव्यूज, 3 क्रिटिकल रिव्यूज। आई मीन वो ठीक है, वो अंपायर को देने चाहिए थे, लेकिन वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स दैट पाकिस्तान हैज नॉट बीन गुड इन रिव्यूज, राइट? सो तीनों जो I don't है। know who is in charge of that today, but I राइट। have to say all three. I missed the LBW. I was working, but the other two, I was absolutely certain that they were not out. And so या whoever made those decisions, kudos to them. That is a huge thing, you know? बिल्कुल। और उस वक्त हमारा एक रिव्यू खाली रहता था तो इट वाज रिस्की, लेकिन Mm. उन्होंने दे वर बिल्कुल इन द निक ऑफ टाइम, दे टुक Yeah, दोस एंड दे वर yeah, ग्रेट रिव्यूज। सो yeah. रिव्यूज अच्छे लिए। आई थिंक बॉडी लैंग्वेज वाइज द टीम सीम्स टू बी जेलिंग। एक Yes. उनके एक एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, दे बैकिंग ईच अदर, जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जब हम वी वर डाउन इन द डंप्स तो वो एक दूसरे को, वी वर हेयरिंग नेगेटिव न्यूज प्रेस के अंदर भी कि जी इसकी उससे लड़ाई हो रही है, फिंगर पॉइंटिंग हो रही है। तो दिस इज व्हाट बीइंग ऑन अ विनिंग स्ट्रीक डज, कि एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और अगर एक दो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह हम बात करेंगे नहीं हो रही, तो उसके बावजूद भी द होल टीम इज जेलिंग वेल टुगेदर एंड दे बेसिकली बैकिंग ईच अदर अप। सो आई लाइक कि आप लोग इसको बिल्ड करें। 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और आप कुछ पॉजिटिव्स की बात करें जो आपने 2 सीरीज, दो मैचेस की देखी हैं। मे बी यू गाइस कैन टॉक अबाउट साइम अयूब। उसके बारे में क्या देखते हैं, व्हाट चेंजेस हैव यू सीन? ऑब्वियसली द नंबर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट क्या कहेंगे साइम अयूब के बारे में? So I would like to just say one thing about Sami. So two things that I think positives. Look, we all know what has been the biggest knock on Sami is his consistency, that he only knows how one way how to play. That first match, it was hard going in the beginning. And as a matter of fact, we know some of our friends were actually saying Simon was playing a terrible innings. And I felt that, he's grinding it out. He's surviving. He's not throwing his wicket away. He's not showing frustration. Dot balls, Bishak. He said, I'm going to stay here. And so it was a grafting type of innings. And again, that shows at this young age the maturity that he has to say, okay, maybe the ball's not coming on the bat. Maybe the timing is not there. I'm not going to throw my wicket away. And to be able to score
in so many different ways. And then, class is permanent. So after a while, he got settled. Right. That one over, he turned it on, hit those 2 6s and a 4. That's what you want to see in a batsman. It's not going well and just throw your wicket away, which we know many batsmen who do that. Many batsmen. So especially for a batsman like Saim who has all the shots. Yes. He knows कि वो बेशक अगर वो शुरू में 70-80 की स्ट्राइक रेट से भी जा रहा है, towards the end he can easily catch up, and he has that confidence. So for a guy who is just 22, remarkable maturity. So Mira, that is one thing, of course. You mentioned Rizwan Khan, and I cannot overemphasize. Look, Babar is a great batsman. As a captain, he would let the match meander and let it go. Whereas, Rizwan finds the time. That partnership. He saw what was going on with Clausen and Miller. You know that you are going to let this match get out of hand. No point waiting. He brought Shaheen Afridi, and he measures the moment well. He understands, he grasps it, and he takes advantage. So he's a good captain. We know that. One thing I want to say also, the last thing that I think we're finally, we've talked about this again and again and again, middle order. Different times we've seen glimpses, but I think we've seen enough in Kamran Ghulam. We've seen enough, I think, personally, in Irfan Niazi to know that these guys are mature enough and have match awareness. They have the shots, they have the ability to be able to be our middle order, at least until the Champions Trophy. We don't have to experiment with that a whole lot. There may be other areas to experiment in, but these two, I think, are fixed for now. And that's good to know, because you say, you're our guys. Hopefully the selectors will say, you are our guys. We're backing you. Be comfortable. Don't be looking over your back thinking, who's going to replace me if I have one failure, two failures. At this point, you need confidence, and confidence comes from the security of knowing that you're in the team. So I'm glad to see those two there. बिल्कुल. जो दोस्त टू के अंदर आप किन की बात कर रहे हैं आप? मैं कामरान गुलाम और इरफान नियाजी की बात अच्छा, इरफान नियाजी को भी कर रहे हैं. चले, उसके बारे में थोड़ा सा मेरा कंसर्न था, बट we'll talk about it. But nevertheless, he's not had a bad series. बहुत remarkable series भी नहीं हुई, लेकिन बहुत उस तरह की भी, he's not sort of been in the headlines. But कामरान गुलाम तो जिस तरीके से वो आज मैच खेला है, और वो इस पोजीशन पे खेला है जिस पे वो नॉर्मली नहीं खेलता, लेकिन उसने हमें शो किया कि he has that extra gear as well if needed. मिर्जा, आप कुछ ऐड करेंगे कॉन्वर्सेशन में? आगा सलमान की हमने बात नहीं की. मे बी यू कैन टच ऑन आगा सलमान. मैं मतलब टीम क्यों जीती है, क्योंकि कुछ चीजें देखो, जीतने से ना कुछ चीजें अंडर द रग चली जाती हैं. ये जो सारा ओडीआई का केओस है ना, इज ऑल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. मैं ओडीआई की अभी लिस्ट मैच शुरू इससे प्रोग्राम शुरू से पहले देख रहा था. जो हम लोगों की टॉप 11 है ना, ये ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया टीम जा रही थी, इस टीम में आगा सलमान जो है हमने 5वें पे रखा हुआ है 11 में से. आगा सलमान वर्ल्ड कप खेला ही नहीं है. इस टीम में हमने अबरार रखा हुआ है 11 में. अबरार अब खेला ओडीआई 1 साल बाद. अच्छा, ये क्रिकेट लेने की जो रिकमेंडेशन थी, आप उसकी बात कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. इस टीम में थे, हमारी टीम में था इमाम फखर बाबर. इमाम फखर बाबर जब तीनों साथ खेले थे, ओडीआई खेलते थे, Pakistan used to be number 1. They used to average 50 each, and they used to be number 1, 2, 3 all together. ये मसला शुरू हुआ है जब से आपने अब्दुल्ला को डाला है, इमाम को ड्रॉप करना शुरू किया है. इमाम आता है तो फिर अब्दुल्ला आता है, तो फखर ड्रॉप हो जाता है. जब से इमाम फखर बाबर ये तीनों साथ नहीं खेले हैं, जब से प्रॉब्लम शुरू हुआ है. सलमान को बहुत 1 साल से मुझे नहीं पता क्यों नहीं खिलाया आपने. अबरार 1.5 साल तक. तो जो सबसे बड़ा दे रहा है, दुरुस्त है कि चलें, एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर, राइट? मगर देर क्यों आया? मतलब ये तो बकवास है ना यार. हम लोग तो एक्सपर्ट्स भी नहीं है. आई हैव एन एविडेंस ऑन दिस प्लेइंग 11. तो अभी भी इस टीम में बहुत फ्लॉज हैं. आप जीत तो गए 12 को, मगर रिजवान नंबर 4 नहीं बनता. मैं मान ही नहीं सकता. आप जो गुलाम है, आपका 10 साल का टॉप स्कोरर है आपके डोमेस्टिक का. ही हैज ऑल द शॉट्स, द वे ही प्लेड. योर बेस्ट बैट्समैन हैज टू बी एट नंबर 4. तो गुलाम का ठीक है 6 पे वो कर गया, मगर ही हैज टू प्ले एट 4 या. और दूसरी बात ये कि चलो साइम से सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया क्योंकि फखर को उसने फिल इन किया. अब्दुल्ला अभी क्वेश्चन मार्क है, फिर बाबर ठीक है आपके पास. ये मेरे ख्याल से तो ये बैटिंग लाइन डिसबैलेंस है. नंबर 4 पे रिजवान, 5 पे आगा, 6 पे गुलाम. तो इसमें ना ये एक आज जो गुलाम ने नंबर 6 पे बैटिंग की है ना, ये बैटिंग किसी ने की नहीं है ओडीआई में 5 साल से. तो जो मिसिंग लिंक था ना जो ओडीआई में, एक और मिसिंग लिंक ये था हमारा कि नंबर 6 और 5 पे हम एक्सेलरेट नहीं करे. तो आगा लुक्स फाइन एट फाइन.
हम इफ्तिखार और वर्ल्ड कप में सऊद और चाचा खेले थे 5-6, मगर उन्होंने से ना एक एक दो मैच जितवा सकते थे। चाचा ने एक मैच में भी आई थिंक शादाब को भी एक में 6 पे खिला दिया था आपने। गुलाम जैसी ना बैटिंग चाचा ने की नहीं वर्ल्ड कप में पूरे से। उसका एक न्यूजीलैंड मैच में ही स्कोर्ड 90 एंड वी एंड अप हम्म। लूजिंग। तो ठीक है, शेप आ रहा है टीम में, मगर आई थिंक एक चेंज बैटिंग ऑर्डर में अभी भी हो सकता है कि फखर को आप फिट करो। फखर को आप ओपनर ही फिर फिट करोगे ना आपके आप। फखर ओपनर ही आएगा। अगर फखर नहीं आता तो मुझे नहीं समझ आया कि इमाम की बाहर क्यों है। आई हैव नो आइडिया कि उसको बाहर क्यों, ऑन व्हाट बेसिस। अब ये I thought कैसे? we were talking about the good things अभी। हाँ हाँ, ये वैसे तो पूरा पूरा कुछ नेगेटिव कुछ क्या? पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं, फिर हम नहीं कंसर्न्स ठीक पे है, भी it's आएंगे। good because this is ये fun, ना yeah. कि ऑलरेडी बताया तो था मैंने कि साइम कर रहा है कि वो जो फखर करता था, फिर गुलाम की जो इनिंग है वो इनिंग तो किसी ने खेली नहीं है 2 साल में ना। तो गुलाम इसी पे बात करते हैं, अगर किसी ने नहीं खेली तो अब क्या आपके ख्याल से उसने सीमेंट नहीं कर ली अपनी पोजीशन? अब तो वो कहेंगे यार तू खेल सकता है, अब तू खेल इस पता पे। है लेकिन नंबर के प्लेयर yeah, नंबर he should be higher up. I agree with that, sir. 4 पे ही विल बी बेटर देन। अगर गुलाम हाँ, को आपको रखना है तो ही विल विन मोर गेम्स फॉर नहीं तो यू। फिर आप क्या रिजवान को डिमोट करोगे? रिजवान के पास तो वो yes, गेम नहीं है yes. इतना खेलने वाली, या रिजवान इज नॉट पावर हिटर, यू नो। रिजवान Rizwan is not a batsman, right? He's not a rec specialist batsman. आपको you want your specialist batsman to play the most deliveries. स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है तो फिर वो 4 पे क्या कर रहा है फिर? वही मैं कह रहा हूँ, मैं that I'm agreeing with you. वही तो मैं कि तो कि उस बेचारे को कहाँ खिलाओगे फिर आप उसको? फिर खुद पे छह जगह नहीं नहीं छह बनती सात पे उसकी, फिर खिलाओ, आप ये कह रहे हो। छह भाई, सात पे खिलाओ। मुझे नहीं पता, मगर आप बेस्ट बैट्समैन 4 पे खेलते हैं पूरी दुनिया में। मुझे नहीं पता रिजवान 4 पे क्या कर रहा है। तो पॉजिटिव ये है नहीं, लेकिन कि आज देखो, चलो आई ऑल्सो हैव कंसर्न विद हिम, बट आज जिस तरह की उसकी इनिंग थी, वो रन अ बॉल इनिंग ऑफ अबाउट 80 रन, सो काफी अच्छी इनिंग्स थी उसकी। ठीक है, ही इज नॉट एस्थेटिकली एज प्लीजिंग, थोड़ा सा वो चीज है कि T20 में आई एग्री कि उसकी काफी पोजीशन पे ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, पर वनडे के अंदर जब आपने थोड़ा एंकर करना होता है, थोड़े सिंगल थोड़े डबल्स। आपके बहुत इज्जत, आपने एक पूरा जुम्मा बाजार लगाया हुआ है एंकर्स का। इसमें अब्दुल्ला शफीक, बाबर, रिजवान आगा, ये सारे एंकर्स हैं। खैर छोड़ो। पॉजिटिव ये था कि गुलाम की ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, दैट्स व्हाई ही इज मैन ऑफ द मैच। और आई थिंक दैट वाज अ मैच विनिंग नॉक। और सबसे बड़ा जो चेंज आया है ना पोस्ट बाबर ओडीआई में, जो हम जो अच्छा कर रहे हैं। पहले ये होता था कि वो पिटे जा रहे हैं हमारे पेसर्स, तो हम यहाँ से बॉलिंग स्पिन की डेप्थ ही नहीं थी। हम वो नवाज और शराब खेलते थे, फिर उसामा मीर भी फ्लॉप हुआ। अब ये हो रहा है कि अबरार कम से कम रन नहीं दे रहा, विकेट ले रहा है। फिर नाउ वी कैन सेफ, आई मीन सेफ टू से के आगा जो है इज नाउ न्यू ऑलराउंडर। यू डोंट नीड नवाज और इवन शादाब। तो आगा इज योर 4-5 बॉलर इजी। अबरार इज नॉट लीकिंग रन्स। और और साइम साइम भी आ सकता है, हाँ। साइम को मुझे नहीं पता क्यों नहीं ओवर दिया। तो आई कैन आर्ग्यू कि आपके पास अब स्पिन ऑलराउंडर आ गए हैं। आई थिंक साइम इज काइंड ऑफ लाइक अ सेफ्टी नेट फॉर द डे जब आगा नहीं चलेगा, तो उसके साथ वो मिल के ये लोग 10 ओवर करा सकते हैं, हाँ, राइट? तो दोनों ओडीआई में सबसे बड़ा डिफरेंस जो जहां पे हमारा मैच बच गया ना, जो पहले जो हम हारे जा रहे थे, कि वो स्पिन से हमें ना बहुत बूस्ट मिला है दोनों ओडीआईज में। विकेट्स नहीं मिलती थी, मार भी पिटती थी। एग्जैक्टली। और एक चीज जो 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 वो हमारी स्ट्रेटजी में मिस हो रही है अभी भी। जब आप कहीं खेलोगे जहां पे आप 4 पेसर खिलाओगे, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खिलाया था, तो 3+1 में ना आमिर जमाल इज अ मस्ट। अगर आप 4 पेसर खिला रहे हो ना दुनिया में कहीं पे भी One ओडीआई has to be an all-rounder, yeah. चैंपियंस ट्रॉफी विल बी नॉट, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मगर आमिर जमाल को ही शुड बी इन द मिक्स, स्पेशली या वो आमिर जमाल या वसीम जूनियर, अगर वसीम जूनियर वापस फॉर्म में आता है, फिटनेस में आता है। वसीम जूनियर इज गुड टू। मगर ये चलो वो उसका भी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। मगर ही शुड बी इन द मिक्स आमिर जमाल, क्योंकि अपनी बैटिंग की वजह से। मगर बैलेंस अच्छा था टीम का, 3 पेसर थे आपका, 3 स्पिनर्स थे ऑन पेपर। तो आई थिंक उससे मैच बच गया ये। और गुलाम की जो बैटिंग थी वो हमने कभी देखी नहीं है इतने अरसे में। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर ले आगा सलमान के ऊपर, हम टच कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बात नहीं हुई कि बहुत एक यूटिलिटी प्लेयर हमें मिल गया है लास्ट 2 ईयर्स से। आप टेस्ट में तो वो था ही अच्छा, बट वनडे के अंदर भी, और वो जो टेल के साथ खेलता है, उसको टेस्ट में भी एक्सपीरियंस है टेल के साथ लेके जाना उसको। पहले इनिंग के अंदर जब साइम आउट भी हो गया, थोड़ा सा हमें एक कोलैप्स की तरफ ही हम चले गए थे, बट उसने अपनी पेशेंस और अपनी कूलनेस को नहीं जाने दिया, और किस तरीके से वो गेम को लेकर गया, फिनिश करके आया है। और साथ ही साथ
ऑल्दो आई नो सैम्पल साइज कम है उसका, ये अभी ये 2 मैचेस ही हैं, बट ओवरऑल अभी भी जो उसकी इकोनॉमी है, द फर्स्ट 15 ODIs और सो दैट इज प्लेड, अबाउट 5.5 इकोनॉमी रेट इज वेरी गुड। और हर मैच में तकरीबन 1-2 विकेट्स निकाल रहा है वो। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यू थिंक अब उसके आने के बाद शादाब की वापसी तो बड़ी मुश्किल लग रही है, राइट? बिकॉज शादाब वाज सपोज टू हैव दैट ऑलराउंडर रोल व्हिच ही हैजंट बीन फुलफिलिंग। जितने भी हम लोग आसिफ भाई और हम लोग जितने भी हमारे पुराने जो क्रिकेट क्लिनिक के जो व्यूअर्स हैं, अगेन मैंने भी जिस तरह बता रहा था, आगा की बात हम लोग काफी पहले से कर रहे थे। तो विद जो ब्रेनलेस क्रिकेट हमारी जो होती है 3-4 साल से, ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर यू कैन सी कि टेस्ट में जिस तरह वो बैटिंग करता है। तो हमें शुरू से आइडिया था कि यार कि थोड़ा स्मार्ट क्रिकेटर लगता है ये, ही स्ट्रीट स्मार्ट। उसकी कैप्टनसी भी की हुई है डोमेस्टिक में। तो ओडीआई में खिलाड़ी हम बात कर रहे थे लास्ट ईयर की, खैर चलो दे रहा है दोस्त है, अब वो कर रहा है। T20 का कि ठीक है, ही डिडंट क्लिक, बट आई वाज ओके विद गिविंग हिम चांस इन T20। आई थिंक पीसीबी लोग समझते हैं कि रिजवान ने कैप्टनसी दे दी तो ये लोगों को आइडिया नहीं है, उसका ये भी मकसद हो सकता था कि अगर ये कैप्टनसी इसको दी थी और ये हारे आता गलती से, तो हो सकता है रिजवान बाहर भी हो जाता। तो दे वर गेटिंग आगा रेडी फॉर कैप्टनसी बेसिकली। तो खैर ओडीआई में तो रिजवान बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, मगर T20 में अनफॉर्चुनेटली आगा अभी नहीं क्लिक हुआ। अब देखते हैं पीएसएल में, ही स्टिल हैज टाइम। तो आगा इज वन ऑफ द स्मार्ट क्रिकेटर्स वी हैव एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, और ही इज परफॉर्मिंग लाइक एक्सपेक्टेड जो हम वर्ल्ड कप पे सोच रहे थे। एंड आई थिंक somebody has more to say on आगा। और Hey, ये I है mean, कि I agree with जी you. बोले। The thing that I said about Ava, and people will shudder at or cringe at this comparison, but it's like Shahid Afridi. You have a player who can impact the game in so many different ways, right? Yeah. He has, uske haath ka bhi dekho, he has huge hands. He does not drop catches. Last time I said that he dropped a catch, so ignore that. But the thing is, he is a great fielder. He is active. You can see he's a leader on the field. It's not just that he's there. He's guiding. He's telling people. He's a smart bowler. Batting wise, he's one of the very few batsmen we have who uses, the 360 degrees. He uses everything. He reverse sweeps when he needs to. He's very, very adaptable, and he's smart about it. It's interesting, we talk about he has a sensible head on his shoulders. Actually, Naseem Shah was far more sensible than he was in that final partnership. Jo comments the Naseem Shah was bang on target, telling him, right. content चाहिए क्या, because, anyway. ऑल्दो कुछ लोगों का बात था कि भैया क्यों नसीम शाह क्यों कह रहा है कि आप उसको एक तरह से परप्लेक्स कर रहे हो, लेट हिम बी। बट हाँ, आई मीन एटलीस्ट अफरीदी से तो बहुत ज्यादा सेंसिबल वो उसने शो किया। अफरीदी ने जिस तरीके से क्रैश शॉट होके आउट, not mentally. I only meant it in the sense that if he doesn't help in one way, he'll contribute in another way. He has multiple facets to his game that can have a positive impact. Right. मुझे he reminds me of, sorry, बोले। वो अभी जो जो चेज किया था, मुझे नहीं याद कि इतना अच्छा चेज हो सकता है 10-15 साल बाद किया हो ओडीआई में। मुझे शारजा याद आ गया था जब सईद अनवर या बीच में मियादाद लोग चेस करते थे। तो ये जो नए लड़के हैं ना, इनसे इनका इम्पैक्ट बहुत नजर आ रहा है कि साइम लुक्स रियली स्मार्ट क्रिकेटर टू, वेरी स्मार्ट। और ये फील्डर भी, दो साइम भी इज अ वेरी गुड, उसने आज छोड़ा है कैच मगर इज अ गुड फील्डर इन द डीप स्लिप। It was a clinical chase like in the days of Shoaib Malik when he used to chase. You know that there's a computer going on in his mind. He's figuring things out. So Saim, they are both are very smart. I think I would like both of them to pursue in in a leadership role in the future, like post Babar Rizwan. फिर आपका नियाजी जो है, मुझे याद है एक पहले ही बोलते थे कि he looks fittest in Pakistan. He's one of the best. एथलीट है पूरा वो तो, डाइवे मारता है और रन भी कर देना तो he is good enough for me because वो रन भी रोकेगा, कैच लेगा। और अभी भी उसने सेंसिबल इनिंग खेली है। तो लग रहा है जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, इनमें थोड़ा दिमाग ज्यादा है, जो बीच में हमारा राइट। तो आई थिंक थिंग्स आर न्याजी का बस आई जस्ट होप कि उसकी कोई एक स्टैंड आउट इनिंग हो जाए ना, कि जिस तरीके से हो जाए कि यार नाउ न्याजी हैज अराइव्ड, जिस तरह आज का इमरान गुलाम ने खेल दिया है, the world is talking about him. South Africa के खिलाफ T20 मैच है जिसमें we scored 300. He scored like 30 and 15 balls. Yeah, that was a good knock. In fact, you were saying now Agha has cemented his place in the team. Not Agha. Right. You're saying Khan has cemented his place in the team right after that innings. नहीं, वो मैं T20 की बात करूँ। T20 में तो I agree. One-day के अंदर he'll get there. There's a question mark यार, चाचा को वापस आना है नहीं आना। अब कैसे डेवलप करोगे? अब दो सीरीज जीत चुके हैं ना,
अब आप ये कर सकते हैं, न्याजी नहीं डेवलप होगा अगर सातवें में बैटिंग करेगा, उसको सातवें में भेजे जा रहा है। एक काम करो, हाँ, उसको कम से कम किसी मैच में फोर्थ या ऊपर फिफ्थ, भेजो। अब आखिरी यस, मैच में तो अब आपको जीतना जरूरी नहीं है ना, तो आप गुलाम और उसको न्याजी को ऊपर बैटिंग करा, रिजवान 3 and पीछे, 4। हाँ, वैसे ही जीत गए। अगर यही मसला हुआ था बाबर रिजवान में, एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि इन्होंने नए बैट्समैन, नए प्लेयर डेवलप नहीं किए सही तरह। अगर हाँ, आप हाँ, 10 ओवर खेल जाओगे और बेंच रोटेट नहीं करोगे, तो जब वही हमारा गैप हम भर रहे हैं ना, हम्म। नियाजी को यू हैव टू आखिरी ओडीआई में भेजो उसे ऊपर, देखो हाँ हाउ नहीं, मच। वो मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जो हम पहला मैच जीते थे, लेकिन उसमें आपको याद होगा कोलैप्स हो गया था, और उस वक्त मतलब कोई स्कोरबोर्ड प्रेशर भी नहीं था। 5 रन की हमको रन रेट चाहिए थी। I mean, ऑल that ही डिड वाज happens. जस्ट, तो उसके अंदर वो 1 रन के ऊपर जिस तरीके से ही गेव अवे हिज विकेट, तो वो था, मुझे था कि यार आज उसके पास अच्छा मौका था, इतना प्रेशर भी नहीं है, जस्ट फिनिश द गेम। दूसरे एंड पे आगे आपके साथ आगा खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जस्ट गॉट आउट फॉर वन, हो जाता है किसी भी प्लेयर के साथ। बट हाँ आई एम मगर जस्ट होपिंग कि कोई एक उसकी ऐसी दबंग इनिंग हो जाए ना, जिस तरह आज कामरान गुलाम किया, तो उसे खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं ओडीआई के अंदर भी मैंने सीमेंट कर लिया अपनी जगह। हाँ मगर वो कैसे होगा, वो सातवें पे तो नहीं होगा ना यार, सातवें में तो हाँ, बॉलें नहीं होती ना, तो उसको भेजना हम्म पड़ेगा ऊपर उसको डेवलप करने के लिए। ये सही जो है। मुदस्सर कह रहा था शुरू में कि one of our peak times was when we had Fakhr, Babar and Imam at the top. That was really strong, but the criticism was that they did थर्टी, so well कि बाकियों नीचे वाले they never got a chance to express themselves. So this, like he's saying, there's a golden opportunity. You won the series. Rizwan and Babar should be comfortable and secure, knowing that their spots are secure. Bring these guys up higher. Let's see what they can do. You know? हाँ नहीं, अच्छा आइडिया उस तरह। ऑन दैट नोट, बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म रिसेंटली, काफी प्रेशर भी था, वो सारी कंट्रोवर्सी अबाउट हिम बीइंग कैप्टन एंड देन द कैप्टनसी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम। उसके बाद ही, इससे पहले थोड़े से उसके कुछ स्टार्ट्स भी थे, बट ही वाज अ बिट अनलकी। आज फाइनली हमने देखा द बाबर आजम ऑफ ओल्ड, उसकी शॉट्स भी लग रही थी, फ्लुएंसी भी थी, स्ट्राइक रेट भी अच्छी थी। और इवन जो विकेट उसकी आउट हुई है, वो यू गॉट अ बिट अनलकी बिकॉज बिल्कुल उसने मिडल किया था, और वो थोड़ी सी जो है ना वो एलिवेशन नहीं मिली, और एक रिमार्केबल कैच उसका पकड़ लिया माकरम ने। वरना लग रहा था कि आज सेंचुरी कर लेगा। तो बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे कि हाउ गुड इट इज कि उसकी फॉर्म अगर वापस आती है तो पाकिस्तान को कितना हेल्प होगा? इससे पहले मैं एक कमेंट आपको कर दूं। सो जब दूसरी विकेट गिरी पाकिस्तान की, मैं एक्चुअली उससे पहले अलेक्सा से स्कोर पूछ रहा था, मैंने अभी लगाया नहीं था। तो पहला था कि एक विकेट गिर गई है, पता चल गया था कि चलो अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया। थोड़ी देर बाद अलेक्सा से पूछा, अलेक्सा ने कहा जी सेकंड विकेट गिर गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि मैं दुआ कर रहा था कि यार बाबर की विकेट गिरी हो, साइम की ना विकेट गिरी हो। कि अब वो वक्त आ गया था कि पीपल वर एक्चुअली विशिंग कि यार साइम रहे, बाबर बेशक आउट हो जाए तो हो जाए, विच इज बिग चेंज वर्सेस Yeah. व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो उस अंदाज में बाबर का वापस आना, क्या कहेंगे इसके बारे यार बाबर सब यार काफी ऑस्ट्रेलिया से पहले लोग कह रहे थे कि क्या होगा, मगर बाबर लोग कंफर्टेबल इन ओडीआई, T20 में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, मगर में? यू कैन सी ही इज स्लोली कमिंग बैक टू हिज फॉर्म। वो उसकी किस्मत खराब है कि वो जब आ रहा है उसके सामने रिजवान खड़ा होते हैं दूसरे एंड में। आई विश हम्म, ही बैट विद ही गेट सम अदर पार्टनर। अगर हाँ टाइम अगर फ्लो में बैटिंग कर रहा है जिस दिन, तो बाबर को एडवांटेज होता है क्योंकि रन रेट का प्रेशर नहीं होता ना उसके ऊपर। अगर आप आज बाबर की स्ट्राइक रेट कम हो गई थी, जैसे ही बाबर रिजवान आया ना, तो उसकी साइम अपनी बाबर की भी जो है स्ट्राइक रेट थोड़ी कम हो गई थी। ये थोड़ा बेचारे, तो T20 में भी बाबर रिजवान साथ हुए हुए होते हैं, और आज ओडीआई में हम्म, भी तो थोड़ी स्लो थी पार्टनरशिप, बट दे पिक्ड अप। हाँ हाँ। तो आई थिंक मेरी थ्योरी तो हमेशा से ये है कि अगर बाबर के सेकंड एंड पे अगर थोड़े तेज खेलने वाले प्लेयर होंगे ना, बाबर विल ऑलवेज बी फाइन। जब वो राइट। सोचता है रन रेट का ना, हालांकि उसका गेम इतना अच्छा है कि हम्म वनडे में खास तौर पे तुम उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसकी स्ट्राइक रेट उसका जो हम्म काफी हाई है, 90। वन हम्म ओडीआई में बुरा नहीं होता, 90+ है शायद बाबर का। तो हम्म आई थिंक उसका हार्श क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर, ओडीआई उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है, एंड हम्म। व्हाट ही डिड ही टुडे इज तो। नंबर वन, आई मीन He is आज still, भी वही मैं जो है। कहने वाला था कि he is still the number one batsman. या And, we said that losing the burden of captaincy helps free him up. I think the emergence of Syme helps free him up as well because he no longer feels all the pressure on his shoulders. कि अगर मैं नहीं करूँ, if I don't score,
then we'll Yeah. lose. Now he knows there are other guys around. So Right. Right. उसके साथ उस freedom के साथ वो अब खेल रहा है. And you know, look, from ball one of the first match in Australia, you could tell Babar was playing at a different level from everyone else. Now it hasn't translated to the huge scores. I still feel like he has to have a breakout innings. I didn't get to see today. I'll watch the highlights later. But yeah, you know, he'll get a century at some point. He's primed. He's in form. He's looking good. He's, you know, peaking at the right time. But Right. he does not have that mental pressure anymore, and that's what he needs. You know, to be free of any distractions and just go and play your game. We know his class is permanent. We know how good he is. He'll come forward. He'll be fine. बिल्कुल बिल्कुल. जब ये बाबर को साथ फखर इमाम सॉरी फखर साइम और बाबर जब टॉप 3 में होंगे ना, तो आई वांट टू सी हाउ बाबर रिएक्ट विद दोस टू If it happens, if it happens. देखें अभी, क्योंकि इसी पे बात कर लेते हैं. चलें अभी जो हमारी रिमेनिंग कंसर्न्स हैं, तो चूंकि फखर का नाम बार बार आ रहा है, तो एक बंदा जिसकी क्वेश्चन मार्क है, इज नॉट बीन परफॉर्मिंग, इज ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक. 2 back-to-back डक्स. और डक्स भी वही चीज है कि ही सीम्स कि कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें. पहली के अंदर वो जो एक गैप उसका, जो हम टेस्ट मैच के अंदर भी देख रहे थे, ही लीव्स अ गैप, तो वो गैप से बोल्ड हो गया. अभी आज वाली इनिंग में उसने गैप को कवर किया तो उसकी पीछे एज लग गई. सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसका एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है. तो उसके यू थिंक के गोइंग फॉरवर्ड अब क्या इसकी सोल्यूशन फखर है? और फखर है तो अब हमारे पास वही अब अपॉर्चुनिटी है कि इसके बाद तो सिर्फ हमारे पास वो जो ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है जिसके अंदर 3 गेम्स हैं, उसी में आप टेस्ट करो तो करो, और तो आप कुछ नहीं कर सकते. यार देखो, अगेन हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि एवरीबडी नीड्स रेस्ट एंड यू नीड सम रोटेशन. इंडिया में ये नहीं होता कि जैसे इनके पास जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है और गिल है. इंडिया वाले कभी नहीं करेंगे कि अगर जायसवाल T20 में बाहर बैठता है, ठीक है, वो जायसवाल को नंबर 6 पे नहीं खिलाएंगे. वो रोटेशन में इस तरह आप करते हो कि जो प्लेयर आपके खेल रहे हैं उनका एक बैकअप रेडी होना चाहिए. तो दैट्स वेयर आई डिसएग्री कि जब नंबर चेंज होते हैं. तो अब्दुल्ला शफीक इज फाइन. आप अब्दुल्ला शफीक है, साइम है, फखर है, इमाम. यू नीड 4 ओपनर्स, क्योंकि 2 आपके बेंच पे होने चाहिए. 2 खेल रहे हैं, 2 बेंच पे होने चाहिए. तो अब्दुल्ला शफीक आपका पूल में रहेगा. अब्दुल्ला शफीक, साइम, फखर एंड इमाम, these 4 यू कवर्ड. पूल में आपने रखना है, लेकिन प्लेइंग 11 में तो जगह नहीं बन रही ना उसकी. ये लोग तो इनकी हरकत है ना, यू नीड टू रोटेट. तो बेचारे से रन नहीं हो रहे, रोटेट करो उसको. हमारी ना पुरानी दकियानूसी मेंटेलिटी है कि खिलाए जाओ बेवकूफों की तरह. भाई आपके पास 4 ओपनर होने चाहिए, आपके पास चारों हैं. इट्स अ गुड पूल. आप उनको रोटेट कर लेते थोड़ा. फिर इसी तरह जब नीचे आते हो तो मेरे ख्याल से बाबर, कामरान गुलाम, ये एक ही तरह के प्लेयर हैं. आप इनको मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा कामरान गुलाम को, मगर कामरान गुलाम कैन बी अ बैकअप फॉर बाबर, इंजरी और रेस्ट या जो भी है. फिर हम नीचे आज तो उसने सीमेंट कर लिया अपनी पोजीशन के नंबर से. मेरे लिए सीमेंट नहीं की है. आई फंडामेंटली डिसएग्री. नंबर 6 जो होती है ना, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्किल. वो पूरे पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, मैं डोमेस्टिक में मैंने तो नहीं सुना नाम के कोई. अब्दुल समद है, मगर वो T20 में है. फिर आपके चाचा वगैरह थे, वो भी 4-5 के प्लेयर थे. 6 जो होते हैं ना, कामरान गुलाम ने खेला है, अगर ये खेल सकते हैं कंसिस्टेंटली तो ठीक है, आप बना दो नंबर 6. मगर नंबर 6 के प्लेयर होते थे उमर अकमल है, या आपका इंडिया में जिस तरह जो वो तो है, लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो खड़ी है ना. वी नीड एन आंसर राइट नाउ. वी कांट जस्ट से कि भाई अब उसमें तो फिर जो ही है आपके पास उसी में से, या तो फिर आप चाचा को वापस लाओ. चाचा या मगर खैर, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. मैं बात कर रहा था अब्दुल्ला शफीक की. तो अब्दुल्ला शफीक इज फाइन. आपको 3-4 ओपनर चाहिए, तो यार उससे नहीं रन हो रहे, उसको और को ट्राई कर लो यार. ये फखर को खिला लो उसकी जगह. और वो अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड में नहीं रखा था ना फखर को. ना फखर को रखा, ना इमाम को. फखर को आई हैव नो डाउट ही इज कमिंग बैक. वो ट्राई नेशन में आ जाएगा फखर. Is he not out for disciplinary reasons? That's the question I have. I think इसका फिटनेस का काफी बड़ा मसला 1-2 साल से हुआ. वो बाहर ही पहले यार, लेकिन वो फिर वो T20 टूर्नामेंट कैसे खेल रहा है वो, मतलब आई थिंक ये कि उससे कहा है कि पहले अपने देखो कि कैन यू इवन प्ले. तो कल स्कोर किया है, सुना उसका नी बड़ा खराब है. तो आई डोंट नो, अगर वो फिट नहीं हो तो आई थिंक वो खुद ही बता देगा. वर्ल्ड कप से वो अनफिट है. 22 साल हो गए हैं, तो ही नीड्स टू एटलीस्ट T20 तो वो खेल रहा है. और आप वो इस तरह का प्लेयर है कि यार, आपने विलियमसन को भी, न्यूजीलैंड में इतना बड़ा प्लेयर है कि उसको खिला लिया था हाफ फिट वो भी. तो आप उसको कम से कम 15 के अंदर तो जगह बनती है ना यार उसकी. मुझे तो डाउट नहीं है. मुझे तो लगता है वो आ रहा है, अनलेस कि वो अनफिट होगा तो नहीं आएगा, वरना वो आ जाएगा.
Uh, Mira Abdullah Shafiqa, I go both ways. I oscillate back and forth because, yeah, it is not too far removed from a time when Abdullah Shafiq was considered technically the most correct batsman we had in the Test team and even in the limited overs team. He won us a match single-handedly against Sri Lanka in the World Cup. He had one or two reasonably good innings against Australia. Jo Saim baat kar rahe the, it's completely true that he had the gap and then he overcompensates. So either he has a gap or he's playing inside the line and he's getting the edge, and it shakes his confidence. And so on one hand, you say you don't want to change a combination right before the Champions Trophy. On the other hand, you say these are matches to prepare us. If the data set is right there in front of you, why do this if you're not going to act on it? So I think I agree. If Fakhr is there, then yes, he must be played. My question is, and I don't know. I mean, I'm less confident than Mudassir is. I hope he's right. I feel like Fakhr is not coming back. I wish he comes back. He's my favorite. The dream opening partnership, Fakhr and Saim. Please let us see that. But if Fakhr is not selected, then Abdullah Shafiq is going to be the one, I think. उसकी एक और रीजन भी मैं आपको बताऊं, फखर का होना इसलिए जरूरी है कि अगर अभी फिलहाल भी वी आर रिलाइंग टू मच ऑन साइम का, साइम हमें इम्पेटस देगा। आज साइम नहीं चला, तो यस एक पार्टनरशिप लग गई रिजवान और बाबर की, बट अगर कामरान गुलाम के वो फायरवर्क्स ना होते तो वी वर लाइक लुकिंग एट 270 280 व्हिच प्रोबेबली वुड हैव बीन चेज्ड बाय दिस बैटिंग लाइनअप ऑफ साउथ अफ्रीका। तो हर रोज कामरान गुलाम नहीं चलेगा, हर रोज आपका इतना फायरवर्क्स नहीं होंगे। तो उसके लिए अगर आपका फखर और साइम होते हैं तो उनमें से अगर एक भी आउट होता है तो दूसरा कम से कम हमारे पास रहता है कि यार दरमियान में मिडिल ऑफ द इनिंग्स में एक एंड से तो कम से कम हमारे रन्स बनते रहे। I guarantee that there'll be a match where they both fail and everyone will criticize them and say they're two guys who are high risk. I know that's what people will say, and I disagree with that completely. I agree that they should both be there. अगर इतना डर है ना तो आप बाबर के साथ, खैर वो T20 में करते हैं कि बाबर और एक स्प्लिट देम अप के, अगर इस टाइम में ये देखो, यही वीकेस्ट लिंक यही था कि पहले सिर्फ फखर पे टीम चल रही थी, तो और एंड ही वाज, इट वाज स्ट्रेंज कि ही वाज मोर कंसिस्टेंट इन ओडीआई देन T20। तो अब जो है साइम इज नॉट अलोन इज नॉट इनफ, तो आपको फखर और ये आपके जो ओपनर्स होते हैं ये हार्ड हिटर्स होते हैं। किसी भी अच्छी टीम को देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पावर प्ले को यूटिलाइज करना होता है आपको। फिर जो बीच में थोड़े से स्लो होते हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर खेल रहे हैं ना वो 5-6 पे खेलते हैं। क्लासन, डेविड मिलर, एक जमाने में हमारे पास एक अच्छी लिस्ट थी उमर अकमल वगैरह की। तो कामरान गुलाम ने जो आज किए है ना, वो तो मुझे 3-4 साल में किसी ने किए ही नहीं है नंबर 6 पे। चाचा से हमें थी कि वो करेगा, मगर डिलीवर नहीं कर सका वो इंटरनेशनली। एक आधी इनिंग अच्छी खेली थी उसने अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, मुझे याद है। और खुशदिल ने कुछ खेली हुई है छठे पे, तो छठे पे ना ये वाली बैटिंग होती है कामरान गुलाम ने जो आज की है। ही इज नॉट नोन टू बी लाइक अ बिग हिटर इन डोमेस्टिक। एक उसकी गुड लक ये थी कि उसको स्पिनर मिल गया। ही इज अ रियली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। हमने इंग्लैंड में देखा है जब उसने डेब्यू छठी बॉल पे छक्का मार दिया था में आते ही। यार आज फास्ट बॉलर्स को भी मारा उसने, जैनसन को उसने रख के मारे। फिर कामरान को ये कर सकता है, नई चीज, इस काफी उसकी एज भी है, तो दैट इज फाइन। जो कामरान ने आज बैटिंग की है ना नंबर 6 पे, दिस थिंग वाज मिसिंग एंड वी नीड समबडी हु कैन डू इट कंसिस्टेंटली एट 6, और आगा इज फाइन एट 5। तो ये थोड़ा लगता है कि कुछ शेप नजर आ रहा है इधर। ठीक। एक और फाइनल चीज जो थोड़ी सी कंसर्निंग मुझे लगी कि कैचेस बड़े ड्रॉप हुए, स्टंपिंग भी मिस हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे? आज तो चलो चल गया बिकॉज स्कोर इतना अच्छा था, बट टाइट गेम्स के अंदर दूसरा दे हैड आल्सो रिटर्न सम फेवर्स, उनके भी 4 कैचेस 3-4 कैचेस उन्होंने भी ड्रॉप किए, 3-4 कैचेस रन आउट्स हमने मिस किए, स्टंपिंग मिस की। क्लासन को हमने 3 लाइफ्स दिए। आई मीन क्लासन इज सच अ बिग प्लेयर, उसको आप चांस नहीं देते। तो हमारी लक इतनी है कि यार इतना क्लोज नहीं था, टारगेट हमारा इतना अच्छा था। इस पे क्या काम किया जा सकता है? रिमेंबर जो हम लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे उसमें हमारी फील्डिंग इंटरेस्टिंगली वाज वेरी गुड, और लोग भी कमेंटेटर्स भी कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान की टीम लग नहीं रही। तो इसके बारे में क्या, आई मीन ऑब्वियसली दिस इज ओनली 2 मंथ्स आर लेफ्ट, आई डोंट नो इसके कोई शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं नहीं है, और डू यू थिंक इट्स मोर ऑफ अ मेंटल थिंग कि जब पाकिस्तान अपनी अच्छी मोमेंटम में जाती है तो फील्डिंग भी बेहतर हो जाती है उनकी? आई थिंक ये ऐसे ही है हमेशा से, ये कि फिर भी साइम ने भी कैच छोड़ा है आज। वैसे फील्डर अच्छा है, फिर इरफान अच्छा फील्डर है, आगा अच्छा फील्डर है, तो आई होप कि फील्डिंग हारिस रऊफ इज गुड। हालांकि उसने भी डॉली छोड़ दिया था लास्ट मैच में। छोटे हैं, मगर ये कि मे बी दे कैन इंप्रूव ऑन इट। राइट राइट।
Yeah, I don't know. It's been a while since we had an actual designated fielding coach. I don't know Abhi hai ya nahi. हम्म The when we were at our peak fielding, I think it was when we won that Champions Trophy. I don't remember his name was Roston or Rossos. There was a New हम्म Zealand guy who was our या fielding coach who made a huge difference. हम्म Look, we have unfortunately our history in international tournaments has been marred by big drop catches. The Wahab Riaz spell against Australia in 2012, Rao हम्म Iftikhar dropped that dolly. In the another semifinal, जिसमें क्या नाम था उसमें who's हसन taking अली हसन Hassan अली Ali ने ड्रॉप dropping. Yeah, Warner, these are things that define our tournaments. हम्म But like you said, we are a confidence team. When we're playing well, the fielding lifts up. So all you can hope for is they're doing well in every other aspect. They put in the work, and then what happens happens. They just have to keep putting in the work. You have to believe that if they're putting in the work, they see the work ethic of these younger guys, it'll rub हम्म off, and they'll just keep improving. यार ऑस्ट्रेलिया में अच्छी फील्डिंग की थी. दे एक्चुअली फील्डेड बेटर देन ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई. ऑस्ट्रेलिया वर हम्म, ड्रॉपिंग कैचेस, पाकिस्तान अच्छी फील्डिंग कर रहा था. हाँ, पाकिस्तान में आई डोंट रिमेम्बर कोई इस तरह का हमने कोई. हाँ आप सही कह रहे हैं, वहां जैम्पा ने कि तो एक दो कैचेस ड्रॉप कर दिए yeah, थे और वो. वो जीते इसीलिए कि कैच सारे पकड़ लिए, वरना डेविड वार्नर का हम हर मैच कैच छोड़ते थे, टेस्ट में भी और ओडीआई में, और हम्म वो कैच yes. आता हाँ था. वार्नर का वर्ल्ड कप में भी हमने उसामा ने छोड़ा हुआ है उसका कैच. Oh, वार्नर Asan. या वार्नर हम्म की और कुछ छोड़ रहे हैं हम लोग, या कोई क्रूशियल कैच ऑस्ट्रेलिया के कहीं छोड़ देते हैं. हाँ हाँ. तो चलें जी एटलीस्ट. और उसके साथ ही आज की दूसरी न्यूज़ तो आपने सुनी होगी कि फाइनली जो एक इशू चल रहा था बीसीसीआई पीसीबी और आईसीसी का, अब रिजॉल्व हो गया है ऑफिशियली. एक प्रेस रिलीज जारी हो गया है कि द चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑन. इट्स अ फ्यूजन स्लैश हाइब्रिड मॉडल कि पाकिस्तान विल प्ले इंडिया इन दुबई. इंडिया के सारे मैचेस वहां पे होंगे. एंड इन रिटर्न आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years जो दो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, the same kind of formula would apply for Pakistani games as well. तो चले अच्छी न्यूज़ है कुछ इसकी. एक तरह से दोनों कंट्रीज के लिए क्रिकेट के लिए अच्छी न्यूज़ है कि चलो एक चीज़ रिजॉल्व हुई. और गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि जिस तरीके से हम ये अब जीतते हुए आ रहे हैं, होपफुली के जो अब थोड़े से हमारे मिसिंग लिंक्स हैं या ट्विंकिंग ट्वीकिंग करने की ज़रूरत है, उसको भी हम करेंगे. उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारी फतवात का सिलसिला है ये कंटिन्यू रहेगा. और एक और अच्छी चीज है कि फिर रमजान में, लास्ट टाइम भी हम वी आर डिफेंडिंग, और रमजान हिस्टोरिकली होता है. 92 वर्ल्ड कप भी हम रमजान, मुझे याद है हम फजर पे उठा करता था, मतलब रोजे शोजे चल रहे थे उस वक्त तो. ऊपर से पीर साहब हमारे कैप्टन है और रमजान है, तो हाँ देखो तो ये क्या पीर होगा. साहब पता नहीं रोजा पाकिस्तान रख के में ना रोजा रख के खेलेंगे तो पता नहीं किस तरह करेंगे. कुछ लोग तो करते हैं वो एक्चुअली. अफगानिस्तान टीम एक्चुअली फास्ट एंड प्लेज सम प्लेयर्स. I'm worried about the crowds. रमजान में पता नहीं लोग आएंगे या नहीं. डे नाइट शायद आ जाए लोग ना. डे नाइट अगर हुआ तो रात को रोजा खोल के हाँ, हाँ यार चले वो ताजरी के फिर बजाय. मसाजिद में दुआएं बस स्पेशल हो रही होंगी. आए. मौलवी हजरात भी लगे होंगे. रमजान टाइम लेट कर, आई डोंट, ऐसा होगा नहीं, इंटरनेशनल है, वरना लेट शुरू करें. लेट हाँ, सहरी तक जाएगा मैच, मगरिब से सहरी. हाँ चलें जी. चलो. इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे. कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह धन्यवाद. हाफिज. वापस